So, hello everyone, welcome to Literary Insight. So, today I'm talking about Emma Woodhouse, who's a clever and handsome woman. All right, so let's start with its biography and her works. Firstly, we are begin with an introduction. So, let's start with the first point of introduction. Emma Woodhouse is the main character of Emma. So, who is the Emma Woodhouse? Emma Woodhouse is the main character of Emma. Emma Woodhouse जो है वो एक main character है Emma novel की. All right, written by Jane Austen. This novel Emma is written by Jane Austen, right? And published in 1815. ये लिखी गई थी जेन ऑस्टिन द्वारा and published कब हुई थी 1815 में हुई थी. All right, so let's come to the second point of introduction. Unlike a real historical person, Emma Woodhouse is a fictional character. देखा जाए एक रियल ही हिस्टोरिकल पर्सन थी. All right, Emma Woodhouse is a fictional character और वो एक fictional character थी. Thirdly, she is one of the most famous heroines in English literature. So, who is Emma? She is one of the most famous heroines. Emma जो थी वो बहुत सुंदर थी. She was a very beautiful woman, rich and clever. All right. So, इसीलिए उन्होंने इस point में ये बात बताई है. She is one of the most कि वो अकेली ऐसी women थी जो बहुत famous heroine थी English literature में. All right. Fourthly, she is admired for her intelligence. वो admired थी अपनी intelligence से, confidence and personal growth. So how she is admired and from which she is admired? She is admired for her firstly intelligence, secondly confidence, and thirdly personal growth. All right, throughout the novel, अपनी पूरी novel में. So let's come to its biography. Biography of Emma Woodhouse. Firstly, Emma Woodhouse is a wealthy, beautiful, and intelligent young woman of about 21 years. So Emma Woodhouse जो है वो wealthy है. Wealthy means rich, beautiful, सुंदर, and intelligent. Intelligent means बहुत होशियार थी. Young woman, young lady, all right, of about 21 years. 21 years. ठीक है, एमा की जो एज थी वो 21 years थी. Secondly, she lives at Hartfield in the fictional village of Highbury with her elderly father. वो कहाँ पर रह रही थी? वो हार्टफील्ड में रह रही थी in the fictional village, जो कि एक fictional village है of Highbury. Highbury का with her elderly father, जो उनके father है उनके साथ. वो कौन है? Mr. Woodhouse. All right. Thirdly, since her mother died when she was young, जब उसकी mother की death हुई थी, तब Emma Woodhouse young थी. All right. Fourthly, Emma has managed many responsibilities in her home. Emma ने बहुत सी responsibilities को manage करके रखा हुआ था अपने घर में. All right. Fifthly, Emma believes she has a special talent for matchmaking. सो एमा ये बिलीव करती थी कि उनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, बहुत खास टैलेंट है मैच मेकिंग करने का, जोड़ियां बनाने का. ऑलराइट. सिक्सथली, आफ्टर सक्सेसफुली एनकरेजिंग द मैरिज ऑफ हर फॉर्मर गवर्नेंस मिस टेलर टू मिस्टर वेस्टन, तो जब वो सक्सेसफुल हो गई थी एनकरेज करने में शादी किसकी? ऑफ हर फॉर्मर गवर्नेंस, जो कि उनके फॉर्मर गवर्नेंस थे, मिस टेलर टू मिस्टर वेस्टन. ऑलराइट. Seventhly, she becomes overconfident and tries to arrange the romantic lives of others. होता क्या था कि वो कई बार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी एंड कोशिश करती थी कि वो अरेंज करे रोमांटिक लाइफ, वो भी दूसरों की. ऑलराइट. Eighthly, however, her plans often lead to misunderstandings and emotional pain. अब आप इसमें जो भी कह लीजिए, उनका जो प्लान था, जो वो प्लान करती थी, उनके प्लान कहाँ लीड करते थे? मिसअंडरस्टैंडिंग्स में लीड कर जाते थे और वो उन्हें एक इमोशनल पेन देके जाते थे. इमोशनली वो हर्ट हो जाती थी. All right. Ninthly, throughout the novel, पूरी novel में ही अगर आप देखा जाए उनकी throughout the novel, Amma learns valuable lessons about humility,
सेल्फ अवेयरनेस एंड काइंडनेस। अपनी पूरी नॉवल में उन्होंने क्या लर्न करा था? व्हाट शी लर्न्स इन थ्रू आउट हर नॉवल, एमा लर्न्स firstly valuable lessons about humility, secondly self-awareness, and thirdly kindness. All right, कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, अपने आप में हम अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, और उन्होंने कुछ वैल्यूएबल लेसन्स भी लर्न करिए हैं अबाउट ह्यूमिलिटी, एंड उन्होंने काइंडनेस भी लर्न करी है। ऑलराइट, टेंथली विद द गाइडेंस ऑफ अ क्लोज फ्रेंड, जो वो अपनी गाइडेंस, वो किसी की गाइडेंस के साथ चल रही थी, जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो कौन थे? मिस्टर नाइटली। ओके, शी रिकॉग्नाइजेस हर मिस्टेक्स, वो अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करने लगी थी, पहचानने लगी थी। रिकॉग्नाइज करना क्या होता है? पहचान करना। ठीक है, she recognizes her mistakes and matures into a more thoughtful and caring person. और वो mature बनती जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा सोचने पर मजबूर हो रही थी, and वो एक caring person बनती जा रही थी। All right, let's come to the 11th point. By the end of the story, जब end आया story का, Amma and Mr. Knightley realize their love for each other. So अब आप देखिए, जो खुद शादी करने के हक में नहीं थी एमा, ठीक है, और अब उन्हें लास्ट में एंड ऑफ स्टोरी में मिस्टर नाइटली को एंड एमा को क्या रियलाइज होता है? कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, रियलाइजेस देयर लव फॉर ईच अदर एंड आर मैरिड, एंड वो शादी करना चाहते हैं, वो शादी कर भी लेते हैं। लेट्स कम टू एमा वुडहाउस वर्क्स। चलिए आइए एमा वुडहाउस के वर्क्स के बारे में बात करते हैं। सी, बिकॉज एमा वुडहाउस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, जो कि क्योंकि एमा वुडहाउस जो थी वो एक फिक्शनल कैरेक्टर थी, शी डिड नॉट राइट एनी लिटरेरी वर्क्स, वो लिटरेरी वर्क्स नहीं लिखती थी। हाउएवर, हर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज एंड contributions in the novel include, चलिए आइए देखते हैं उनकी important activities and contribution क्या रही है novel में। So let's start with the first point, which is matchmaking. पहला कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा है? जो कि उन्होंने मैच मेकिंग करे हैं। मैच मेकिंग मीन्स जोड़ियां बनाई है कपल्स की। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एमा अटेम्प्ट्स टू अरेंज मैरिजेस। एमा ने क्या अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए थे? कि वो मैरिजेस करना शुरू, अरेंज करती थी मैरिजेस। ऑलराइट, especially between Harriet Smith and several potential partners. और वो भी किसके बीच में? हैरियट स्मिथ के बीच में एंड सेवरल पोटेंशियल पार्टनर्स के बीच में। सी गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताऊंगी, एमा बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। फर्स्टली तो जब मेरे पास भी लिटरेचर सब्जेक्ट था तो मुझे भी लगता था कि इट इज क्वाइट बोरिंग, बट इट इज नॉट, एक्चुअली इट इज नॉट। बट जब आप पढ़ने लगते हैं ना, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बोरिंग वो लगेगा, बट जब आप इंटरेस्ट लेके उसको धीरे 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 आगे बढ़ेंगे ना, कि उन्होंने क्या क्या वर्क्स करे हैं और आगे भी उन्होंने क्या क्या करा है। सो गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए बनती जाएंगी। सो प्लीज गाइस, मैं आप लोगों को जरूर कहती हूँ कि एमा की नॉवल को आप लोग बाय करें, और वो आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग नॉवल बनेगी कि आप लोग कम से कम उसको पढ़ के भी आपको खुशी मिलेगी और आप थोड़ा सा हंसोगे भी कि ये हो क्या रहा है, एमा कर क्या रही है एक्चुअल में। ऑलराइट, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। especially between Harriet Smith and several potential partners, और वो भी किसके बीच में? Harriet Smith and several potential partners के बीच में। ऑलराइट, सेकेंडली सोशल लीडरशिप। सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं? वो सोशल लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं। एज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ हाइब्रिड सोसाइटी, एक रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ हाइब्रिड सोसाइटी होने के नाते, शी रिकॉग्नाइजेस विजिट्स, सोशल गैदरिंग्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। सी गाइस, प्लीज आप लोग बुरा मत मानना कि मैं हंस के पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि मैं ये नॉवल पूरी पढ़ चुकी हूँ, और मुझे इस पे ये है कि मुझे पता है इसने क्या क्या काम करे हैं और क्या क्या करा है मैंने। सो एंड इंटरेस्टिंग भी है, देखो पढ़ने में भी अच्छा लगता है इसको। सो आई होप कि आप लोग जो मैंने नोट्स भी शेयर करे हैं वो आपको मे भी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से।
और इजी भी है, इजी टू लर्न है। मेरे नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, कोई मतलब कहते हैं ना डिफिकल्ट लैंग्वेज मैंने यूज नहीं करी अपने नोट्स में। सो आप लोग अच्छे से, आप लोगों को इस पे जिनके पास लिटरेचर है एंड जो वैसे भी इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर के बारे में, इनके ऊपर आपको आगे से आगे ना, जब आप आगे बढ़ेंगे लिटरेचर में, तो आपको असाइनमेंट्स भी आएंगी इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। सो होप इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी मार्क्स इंक्रीज करने में, एंड ये एग्जाम्स में भी आते हैं, नो डाउट, डेफिनेटली एग्जाम्स में आते हैं और इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब सेकेंड पॉइंट में उन्होंने सोशल लीडरशिप के बारे में बात करी थी कि वो एक रिस्पेक्टेड मेंबर, हाईली सोसाइटी की रिस्पेक्टेड मेंबर होने के नाते शी ऑर्गेनाइजेस विजिट्स। उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करा? फर्स्टली विजिट्स, सेकेंडली सोशल गैदरिंग्स, एंड थर्डली चैरिटेबल एक्टिविटीज। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या कहा? Emma's greatness achievement is her transformation. एमा की जो ग्रेटनेस अचीवमेंट है ना, वो उनकी खुद के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, फ्रॉम अ प्राउड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट यंग वुमन इनटू अ हम्बल एंड compassionate individual. सो एमा की जो ग्रेटनेस अचीवमेंट है वो उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे? फ्रॉम अ प्राउड, एक प्राउड एंड सेल्फ एंड कॉन्फिडेंट यंग वुमेन होते हुए भी इनटू अ हम्बल, वो एक हम्बल एंड कंपैशनेट इंडिविजुअल में बदल जाती है। ऑलराइट, ये उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो एक प्राउड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट यंग वुमेन होते हुए भी वो किस में बदल जाती है? एक हम्बल एंड कंपैशनेट इंडिविजुअल। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। दूसरों पे इन चीजों का क्या इन्फ्लुएंस होता है? her actions, उनके actions, all right, firstly her actions, secondly both successfully and mistaken, कि वो अपनी सक्सेस में भी बहुत आगे ग्रोथ उन्हें मिल जाती है एंड वो अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करने लग जाती है। ऑलराइट, thirdly shape the lives of many characters, उन्होंने बहुत से कैरेक्टर्स की लाइफ को शेप करा है। फोर्थली ड्राइव द इवेंट्स ऑफ द नॉवल, और वो नॉवेल्स के इवेंट्स में चलती चले जा रहे हैं। All right, let's come to its themes. Themes of Emma Woodhouse. Emma's character highlights several important themes. Emma's के जो character है ना, उन्होंने highlight करे हैं several important themes को. So let's start with the first point. Self-discovery and personal growth. फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ? उनकी सेल्फ डिस्कवरी हुई है, खुद की डिस्कवर, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर करा है। एंड पर्सनल ग्रोथ हो गई, उनकी पर्सनल ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, मतलब वो पहले क्या, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में भी क्या बताया कि वो, मैंने आप लोगों को लास्ट पॉइंट में ये बताया कि वो एक क्या थी, एक प्राउड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमन होते हुआते भी हम्बल होती गई, राइट, और उनमें काइंडनेस आती गई। ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज पर्सनल ग्रोथ। उनकी पर्सनल ग्रोथ इस चीज से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, प्राइड इन ह्यूमिलिटी। प्राइड क्या होता है? गर्व, प्राइड इन ह्यूमिलिटी। thirdly लव एंड मैरिज। बनाती थी ना, आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया दैट शी इंजॉयज मेकिंग मैचेस, जोड़ियां बनाना बहुत पसंद करती थी। thirdly लव एंड मैरिज। फोर्थली सोशल क्लास एंड रिलेशनशिप्स। उनकी जो सोशल क्लास थे, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती थी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। फिफ्थली फ्रेंडशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट में आ जाता है फ्रेंडशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंडशिप में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू इट्स कंक्लूजन. Let's begin with the first point of conclusion, which is Emma Woodhouse is one of the most memorable heroines created by Jane Austen. So Emma Woodhouse क्या है? एक अकेली मेमोरेबल हीरोइंस है जिनको कोई कभी भूल नहीं सकता। उनको कहते हैं मेमोरेबल हीरोइंस, जिनको लोग हमेशा याद करते हैं। जो किसके द्वारा क्रिएट हुई है ये नॉवल? क्रिएटेड बाय जेन ऑस्टन।
Secondly, she begins as a confident and sometimes सेकंड उस पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि वो एक कॉन्फिडेंट बन जाती है एंड समटाइम्स मिसगाइडेड यंग और कई बार वो दूसरों द्वारा इतनी मिसगाइड हो जाती है ऑलराइट thirdly her journey from self assurance to self understanding makes her a timeless literary character उनकी जो जर्नी है ना सेल्फ एश्योरेंस से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है मेक्स हर अ टाइमलेस लिटरेरी कैरेक्टर वो उन्हें क्या बना देती है टाइमलेस कि उनके पास टाइम नहीं रहता टाइम बहुत कम हो जाता है मीन्स टाइमलेस लिटरेरी कैरेक्टर बना देती है ठीक है फोर्थली थ्रू एमा ऑस्टन एक्सप्लोर्स एमा के द्वारा ऑस्टन ने क्या एक्सप्लोर करा है firstly human nature secondly relationships and the third last important importance of recognizing one's own faults क्या करे हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस किसकी इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज करना पहचानना खुद की कमियों को खुद की खामियों को पहचानने लग जाती हैं अपनी फॉल्ट्स को उन्होंने पहचाना है ऑलराइट एंड फोर्थली मेकिंग एमा अ लास्टिंग क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और खुद को क्या बनाना एक लास्टिंग क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि वो मतलब एक ऐसी क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर है ना हीरोइन जिसको कहते हैं एक तो ब्यूटीफुल रिच एंड क्लेवर women so thank you so much for watching it do like share and subscribe to Literary Insight and don't forget to press the bell icon so guys please आप जरूर देखिए वीडियोस को ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प आउट करने वाला है एंड आई होप आप लोगों को अच्छी भी लगती हो सो प्लीज देखिए आप में से बहुत लोग व्यूज करते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज आप सब्सक्राइब करिए आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे आगे भी लाइक करिए शेयर करिए कमेंट सेशन में मुझे बताइए आप लोगों को क्या अच्छा लगता है वीडियोस में कुछ अगर आपको लगता है कि किसी चीज की कमी है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेशन में ऐसा कुछ नहीं है बट प्लीज ऐसे लिखिए कि मतलब कुछ मतलब वो लिखो कि हाँ अच्छा लगे देखो आगे देखने वाले को तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कुछ आपको वीडियोस में कमी लग रही है या आपको लेसन समझ नहीं आ रहे हैं जो क्वेश्चंस मैं डालती हूँ सी गाइस जो ये क्वेश्चंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है आप मानोगे जब मेरे पास भी लिटरेचर थी तो ये असाइनमेंट की फॉर्म्स में भी आते थे ऑलराइट और डेफिनेटली आएंगे आप लोगों के असाइनमेंट्स की फॉर्म में और ये आपको हेल्प आउट भी करेंगे ऑलराइट आप इनको थोड़ा सा ना मैं तो देखो शॉर्ट्स बनाए हैं ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ऑलराइट आप इनको थोड़ा सा वाइड भी कर सकते हैं आप इनको लॉन्ग नोट्स में भी बना सकते हैं गाइस बहुत कुछ बन जाता है छोटे नोट्स में से भी लॉन्ग हो जाते हैं पॉइंट्स को बस आपको वो करना होता है डिवाइड करना होता है पॉइंट्स को ऑलराइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट if you like it please do like share and subscribe to my channel and please आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कुछ आपको कुछ टॉपिक्स और नए चाहिए पोएट्री के टॉपिक्स भी मैं लाने वाली हूँ अभी अपनी अपकमिंग वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में सो आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए आपको जो क्वेश्चंस चाहिए रिगार्डिंग लिटरेचर प्लीज डू टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन okay thank you so much do motivate me guys bye bye